معزز مہمان دوست اور شو بزنس کے حوالے سے بڑی معروف شخصیت ہیں اور میرے دوست جناب فدا سمرو صاحب جو پرچی لے کر آئے ہیں، تو ہمارے درمیان محمد محی الدین صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک معروف بزنس مین ہیں اور اس وقت ہمارے درمیان ہیں، لیکن اب جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو مجھے پھر دیگر مہمانوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہے۔ تو بہرحال پہلے میں ذرا یہ بتا دوں کہ ہمارے درمیان بہت سارے ایسے دوست ہیں، فاروق ارشی صاحب ہیں، فہیم برنی صاحب ہیں، رانا رفیق صاحب ہیں اور سکینہ جعفری صاحبہ کچن فیشن کے ایڈیٹر، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عبدالکریم شیخ صاحب جو بہت بڑے خطاط اور مصور ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ منان حمید بہت اچھے ایکٹر ہیں، آپ انہیں ٹی وی پر بھی دیکھتے ہیں، لیکن میں انہیں ریڈیو صداکار کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں اور مصور کی حیثیت سے بھی جانتا ہوں، تو یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کا تذکرہ یہاں، وحید جاوید صاحب ابھی تشریف لائے ہوئے تھے، شاید نماز پڑھنے گئے، وہ ہمارے درمیان معروف صحافی ہیں۔ تو بہرحال جناب صدر کی اجازت سے کہ تصویر گلے تر حد امکان میں رکھنا، تصویر گلے تر حد امکان میں رکھنا، رنگوں کی نمائش کسی گلدان میں رکھنا، تصویر گلے تر حد امکان میں رکھنا، رنگوں کی نمائش کسی گلدان میں رکھنا، اور کینجھر کے کنارے پہ نئے گیت ملیں گے، کینجھر کے کنارے پہ نئے گیت ملیں گے، ایک جذبہ عاشق دل سلطان میں رکھنا، کینجھر کے کنارے پہ نئے گیت ملیں گے، ایک جذبہ عاشق دل سلطان میں رکھنا۔ اور ایک اور غزل میں سے دو شعر، میری کتاب محبت رقص کرتی ہے کہ لطیف ہے کہ جب اس کی آنکھ میں کوئی شرارت رقص کرتی ہے، جب اس کی آنکھ میں کوئی شرارت رقص کرتی ہے، ہمارے دل کے آنگن میں محبت رقص کرتی ہے، جب اس کی آنکھ میں کوئی شرارت رقص کرتی ہے، ہمارے دل کے آنگن میں محبت رقص کرتی ہے۔ اور ایک شعر جو ہمارے جو تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس کی وہ ہوگی کہ عجب اعزاز ہے یہ عشق کے زندہ کرشموں کا، عجب اعزاز ہے یہ عشق کے زندہ کرشموں کا، کوئی مجذوب آ جائے تو تربت رقص کرتی ہے، عجب اعزاز ہے یہ عشق کے زندہ کرشموں کا، کوئی مجذوب آ جائے تو تربت رقص کرتی ہے۔ اور ایک غزل کے چند شعر آپ کی نظر کر کے پھر مہمان کہ جب سرے شام مہکتا ہے قلندر مجھ میں، جب سرے شام مہکتا ہے قلندر مجھ میں، رقص کرتا ہوا آتا ہے سمندر مجھ میں، جب سرے شام مہکتا ہے قلندر مجھ میں، رقص کرتا ہوا آتا ہے سمندر مجھ میں، اور فیض کے چشمے ابلتے ہیں میری پوروں سے، فیض کے چشمے ابلتے ہیں میری پوروں سے، خیمہ زن ہوتا ہے جب خیر کا لشکر مجھ میں، فیض کے چشمے ابلتے ہیں میری پوروں سے، خیمہ زن ہوتا ہے جب خیر کا لشکر مجھ میں، اور آتش عشق میری خاک کا سرما نہ بنا، آتش عشق میری خاک کا سرما نہ بنا، کیوں بپا کرتی ہے ہر روز تو محشر مجھ میں، آتش عشق میری خاک کا سرما نہ بنا، کیوں بپا کرتی ہے ہر روز تو محشر مجھ میں، اور ترک کر دے تو گماں مجھ سے جدا ہونے کا، ترک کر دے تو گماں مجھ سے جدا ہونے کا، میں نے دیکھا ہے لکھا تیرا مقدر مجھ میں، ترک کر دے تو گماں مجھ سے جدا ہونے کا، میں نے دیکھا ہے لکھا تیرا مقدر مجھ میں، اور کشف و عرفان عطا ہوتا نہیں ہے سب کو،
کشف و عرفان عطا ہوتا نہیں ہے سب کو، فکر اقبال نظر آتی ہے اکثر مجھ میں. کشف و عرفان عطا ہوتا نہیں ہے سب کو، فکر اقبال نظر آتی ہے اکثر مجھ میں. اور اب ہم آگے بڑھاتے ہیں مشاعرے کو. میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان ہمارے ایک دوست جو فلم میکنگ کے حوالے سے اور براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے اور ٹیلی فلم کے حوالے سے ایکٹنگ کے حوالے سے تو مشہور ہیں، لیکن یہ مجھے بھی بڑا حیرت ہوا کہ وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور امریکہ سے ان دنوں آئے ہوئے ہیں اپنے کسی نجی پروجیکٹ کے لیے. اسد نذیر ابھی ہمارے درمیان یہاں موجود تھے، تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے بھی نوازیں تاکہ یہ نیا جو آپ کا پہلو ہے وہ بھی دوستوں کے سامنے آ سکے. میں کچھ ایک دو شعر اپنے آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک لفظ بھی سنا دیتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگے. بادلوں سے بس اتنا ہی گلا ہے، بادلوں سے بس اتنا ہی گلا ہے، یہ میرا چاند چھپا لیتے ہیں. بادلوں سے بس اتنا ہی گلا ہے، یہ میرا چاند چھپا لیتے ہیں. اور چاند پہ یہ ایک اور شعر ہے کہ میری طرح چاند بھی آوارہ نکلا، میری طرح چاند بھی آوارہ نکلا، جس گلی جاؤ نکل آتا ہے. کیا بتائیں زندگی کیسے گزری، کیا بتائیں زندگی کیسے گزری، چاند سے دور سورج جیسی گزری، چاند سے دور سورج جیسے گزری. اور ابھی تو آغاز ہوا ہے شب کا، ابھی تو آغاز ہوا ہے شب کا، کل بتائیں گے رات کیسی گزری. میرے کچے مکان کو اڑا لے گئی، میرے کچے مکان کو اڑا لے گئی، ایک آندھی میرے گھر سے ایسی گزری، ایک آندھی میرے گھر سے ایسی گزری. اور خوف مرنے کا مجھ میں نہیں ہے، خوف مرنے کا مجھ میں نہیں رہا، مجھ میں نہیں رہا، ہر گھڑی میرے گھر سے موت سی گزری. اور ایک مرتبہ ہے کہ زندگی سے اسد کوئی نہیں مرا، زندگی سے اسد کوئی نہیں مرا، جیسا نصیب تھا ویسے گزری. تھینک یو ویری مچ. ہمارے درمیان ایک اور سینئر شاعر جناب اسماعیل اختر ہاشمی صاحب موجود ہیں. مجھے ان کے بارے میں علم نہیں تھا، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. وہ سندھی میں بھی شعر لکھتے ہیں اور اردو میں بھی لکھتے ہیں، تو میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں کہ ان سے کوتاہی ہوئی، لیکن چونکہ میرے علم میں نہیں تھا اور ہمارے جو مہمان شعراء میں موجود نہیں تھے، تو بہرحال ان کی آمد ہمارے لیے بہت طمانینت کا سبب ہے. آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترم اسماعیل اختر ہاشمی. چند اشعار. قصہ ناتمام ہے اب تک، قصہ ناتمام ہے اب تک، شاہ آتش بجام ہیں اب تک. ہم ز فیض نیابت معکوس، ہم ز فیض نیابت معکوس نوکروں کے غلام ہیں. ہم ز فیض نیابت معکوس نوکروں کے غلام ہیں. غزل کے چند اشعار ریحانہ روحی صاحب کو یہ کسی محفل میں پسند آئے. اتنی شدت سے کرو ہو پیار تو ہے، اتنی شدت سے کرو ہو پیار تو کر لیا ہوتا کبھی اقرار، کر لیا ہوتا کبھی اقرار تو منتظر مدت سے ہیں میں خار تو،
منتظر مدت سے ہیں میں خار تو ساقیہ اقبال ہو دیدار لگ رہے ہیں درد کے آثار تو لگ رہے ہیں درد کے آثار تو ان کے چہرے سے ہوا اظہار ان کے چہرے سے ہوا اظہار تو شیخ گردن سے ہٹا تلوار تو شیخ گردن سے ہٹا تلوار تو پہلے آ جائیں میرے سرکار تو اور سہل ہو جائیں گی سب دشواریاں سہل ہو جائیں گی سب دشواریاں کر لیا دریائے آتش پار تو یوں لگا کچھ تو کہیں تھے چاہنا یہ پرانی اردو یوں لگا کچھ تو کہیں تھے چاہنا بام پر آئے وہ پچھلی بار تو بام پر آئے وہ پچھلی بار تو دیکھنا محشر بپا کر دیں گے دیکھنا محشر بپا کر دیں گے ہم کر کے دکھلائیں ذرا انکار دیکھنا محشر بپا کر دیں گے ہم کر کے دکھلائیں ذرا انکار اور کیا ہوا گریاں ہیں گر فصل طرف کیا ہوا گریاں ہیں گر فصل طرف خوش ہے لیکن ناظم گلزار خوش ہے لیکن ناظم گلزار تو کرچیاں ہو جائے گی امید وصل کرچیاں ہو جائے گی امید وصل گر نہیں دھڑکا دل بیمار اور رفتہ رفتہ سب گلے مٹ جائیں گے رفتہ رفتہ سب گلے مٹ جائیں گے ہم گرا دیں بیچ سے دیوار ہم گرا دیں بیچ سے دیوار تو آپ یوں ہیں میرے دل میں جس طرح اب تو کا استعمال دیکھیے گا آپ یوں ہیں میرے دل میں جس طرح قلب انڈونیشیا سوہار تو یوں ہیں میرے دل میں جس طرح قلب انڈونیشیا سوہار تو بخود آ جائے گی طرز فغان خود بخود آ جائے گی طرز فغان ہم سے ہونے دیجئے دو چار تو کس لیے خواہش کس لیے خائف ہے شبنم اے صبا کس لیے خائف ہے شبنم اے صبا شاخ گل کے ہیں نگہباں خار تو شاخ گل کے ہیں نگہباں خار تو اور ہے دروغ مصلحت بھی جھوٹ ہی فارسی کی مثال ہے نا دروغ مصلحت آمیز بے عد راستے فتنہ انگیز ہے دروغ مصلحت بھی جھوٹ ہی چھپ کے بولو تو سرے دربار ہے دروغ مصلحت بھی جھوٹ ہی چھپ کے بولو تو سرے دربار تو مجرم ایمان فروشی ہم شبی دو کا استعمال دے دیے مجرم ایمان فروشی ہم شبی چون فروشی حرمت دستار تو مجرم ایمان فروشی ہم شبی کیوں فروشی حرمت دستار تو اور ہیں خراج خون معصومہ فقط ہیں خراج خون معصومہ فقط لال و گوہر درہم و دینار تو اور تو نہ جانے کس لیے اچھا نہیں لگتا ہے تو نہ جانے کس لیے اچھا نہیں شاہ اچھے ہیں تیرے اشعار تو ایسا کرتے ہیں کہ اب آگے اگلے جو مہمان ہمارے ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان سے تو تھا لیکن اب وہ امریکہ میں قیام پذیر ہیں اور فلمی نغمہ نگاری کے حوالے سے انہوں نے اس وقت اپنا نام بنایا جب عطیل شفائی جیسے اور جوش جیسے لوگ بھی فلموں کے لیے لکھ رہے تھے
फैज़ ने भी कुछ लिखा, फिर फयाज हाशमी और कलीम उस्मानी और सैफुद्दीन सैफ और बेशुमार वो लोग जिनका अदब में बड़ा नाम है, वो फिल्म के लिए लिख रहे थे। उस दौरान में एक नौजवान जो है वो उनमें शामिल हुआ, कराची का नाम उसने बनाया और कराची की इंडस्ट्री के साथ लाहौर की इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा किया। और अब फिर संजीदगी से शायरी की तरफ आगे फिल्म का जब शोबा सवाल पजीर हुआ तो आप इतनी बातें करने के बाद मुझे नाम लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देता हूँ यूनुस मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज मैं ये मुशायरे का हिस्सा बन। सिर्फ मेरी भी जन्मभूमि समझ ले रही है। बचपन मैंने कराची में गुजारा, कराची में गुजारी, जब बुढ़ापे से मुलाकात रही तो अमेरिका चले गए। जनाब सर की इजाजत से वक्त काफी हो चुका है, तो चंद अशार है कि अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो। क्या बात है, क्या बात है। अपनों को पहले अपना बनाए तो बात हो, हम अपनी नफरतों को मिटाएं तो बात हो। और चेहरा गरीब शहर का झुलसा हुआ है क्यों, चेहरा गरीब शहर का झुलसा हुआ है क्यों, महरूमियों की आग बुझाए तो बात हो। चेहरा गरीब शहर का झुलसा हुआ है क्यों, महरूमियों की आग बुझाए तो बात हो। हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, माहौल खुशगवार बनाए तो बात हो। हमदम सुकून दिल के लिए अज़्म चाहिए, माहौल खुशगवार बनाए तो बात हो। एक कथा और उसके बाद एक गजल के बाद इजाजत दूंगा। कथा है कि वो भी निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं, वो भी निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं, कागज की एक कश्ती सभी चला रहे हैं। वो भी निभा रहे हैं, हम भी निभा रहे हैं, कागज की एक कश्ती सभी चला रहे हैं। अब बेहिसी का आलम ये हो गया है यारों, अब बेहिसी का आलम ये हो गया है यारों, फूलों के जैसे रिश्ते पत्थर बना रहे हैं। फूलों के जैसे रिश्ते पत्थर बना रहे हैं। गजल शेर के खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को तुमसा बना के देखा था, खुद को यूं आजमा के देखा था। हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था। हमने दुनिया की हर खुशी के लिए तुमको दुनिया बना के देखा था। फिर भी सारा जमाना जान गया, फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। फिर भी सारा जमाना जान गया, तुमको कितना छुपा के देखा था। और फूल खिल गए हंसू, फूल खिल गए हंसू, एक पौधा लगा के देखा था। फूल खिल गए हंसू, एक पौधा लगा के देखा था। और प्यार से बन गया वही मोती, प्यार से बन गया वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था। प्यार से बन गया वही मोती, एक पत्थर उठा के देखा था। और रह गुजर उनकी हो गई रोशन, रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। रह गुजर उनकी हो गई रोशन, हमने दिल को जला के देखा था। और जितने दुश्मन थे, इसे तवज्जो तलब है,
ये जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा। जितने दुश्मन थे दोस्त बनते गए, खुद को थोड़ा झुका के देखा था। और चंद अशआर हैं कि फराज साहब और फैज मेरे पसंदीदा शायर हैं, तो फराज साहब की बरसी पर अमेरिका की रियासत में मुशायरा हुआ था, मैं गया था न्यू जर्सी से, हिमायत अली शायर साहब आए थे कनाडा से, तो उनकी ज़मीन पर मैंने चंद अशआर सुना थे, नज़्म करता हूँ आपकी। वक्त ऐसा न कभी आए कि ख्वाबों में मिले, वक्त ऐसा न कभी आए कि ख्वाबों में मिले, खिलती कलियों में मिले, हंसते गुलाबों में मिले। वक्त ऐसा न कभी आए कि ख्वाबों में मिले, खिलती कलियों में मिले, हंसते गुलाबों में मिले। आओ दुनिया से कहीं दूर चले जाए हम, आओ दुनिया से कहीं दूर चले जाए हम, कब तक हम यहाँ दुनिया के अजाबों में मिले, कब तक हम यहाँ दुनिया के अजाबों में मिले। और उनके आंचल पे फरिश्ते भी करेंगे सजदा, उनके आंचल पे फरिश्ते भी करेंगे सजदा। आज के दौर में जो चेहरे हिजाबों में मिले, आज के दौर में। जनाब यूनुस हमदम अपने खूबसूरत कलाम से आपको महसूस कर रहे थे, और अब आते हैं हमारे आज के जो इस स्टेज पर मौजूद, जिनको हमने मेहमान एजाज़ी, मेहमान खुसूसी और सदर मुशायरा के मनसब पर बिठाया है। तो मोहतरमा रेहाना रूही किसी तारुफ की मोहताज नहीं, आज की इस महफिल मुशायरा की मेहमान एजाज़ी हैं, और ख़वातीन का एक इस्तारा है शायरी में। उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और अपने ख़यालात या अपनी शायरी जो मुनासिब समझे दोनों से मुख्तसर है। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस डिसीजन की कि जो सिंधी और उर्दू का मुशायरा किया गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत भी है। और हम लोगों को इस यकजहती की बेतहाशा कभी शायद इतनी ज़रूरत नहीं थी लेती हमें। तो अदब के हवाले से जो मोहब्बतें हैं और जो ये काम हो सकता है वो किसी और फोरम से नहीं हो सकता। तो इकबाल सरवानी साहब को और अदबियात के जो डायरेक्टर हैं हमारे, मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं उनको भी बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और मैं एक फूलों का गुलदस्ता इसीलिए लेकर आई हूँ उनके लिए, आप लोगों के लिए। मैं शार पेश करती हूँ। क्यों दुआ मांगना, क्या दुआ मांगना, क्यों बात भी खोना साईं। क्या दुआ मांगना, क्यों बात भी खोना साईं, जबकि होनी को है हर हाल में होना साईं। साहिब सदर की इजाजत से, क्यों क्या दुआ मांगना, क्यों बात भी खोना साईं, जबकि होनी को है हर हाल में होना साईं। क्या बात है। और कुछ देर का रहता है तमाशा बाकी, और कुछ देर का रहता है तमाशा बाकी, खाक हो जाएगा फिर जिस्म का सोना खाक हो जाएगा फिर जिस्म का सोना साईं। तुम समंदर से मुलाकात को जाना तो वहाँ, तुम समंदर से मुलाकात को जाना तो वहाँ, पाँव बहती हुई लहरों में भिगोना तुमसे बिछड़े हैं तो देखा हमने, दिन न होना तो कभी रात न होना। और दो तीन शेर और देखिएगा कि इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, इश्क के रोग अच्छे लगने लगे, हिजर के सोग अच्छे लगने लगे। और जब से वो बेवफा हुआ रूही, जब से वो बेवफा हुआ रूही, बेवफा लोग अच्छे लगने लगे।
नहीं जान भी गंवाई हुई है, इश्क में दिल ही नहीं जान भी गंवाई हुई है, मैंने यूं ही नहीं इज्जत ये कमाई हुई है, मैंने यूं ही नहीं इज्जत ये कमाई हुई है, मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साईं, मेरा मनसब तेरे कदमों में नहीं है साईं, मैं वो औरत हूँ जो पसली से बनाई, जो पसली से बनाई हुई है, बेवफा होते हैं हम शरबती आंखों वाले, बेवफा होते हैं हम शरबती आंखों वाले, ये हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई, हवाई किसी दुश्मन की उड़ाई हुई है, जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, जाके भी जा नहीं पाया है वो जाया हुआ शख्स, याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स, याद आता है मुसलसल वो भुलाया हुआ शख्स, और जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, जिसको हम अपना बनाते हुए खाशाक हुए, वो भी निकला है जमाने का बनाया हुआ, वो भी निकला है जमाने का बनाया हुआ शख्स, अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई सबको लेकिन, अच्छी लगती हूँ मैं हंसती हुई सबको लेकिन, कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ, हंसती हुई सबको लेकिन, कैसे हंस सकता है अंदर से रुलाया हुआ शख्स, डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, और चला जाए ना वो ख्वाब में, डरती हूँ सोते हुए आंख न खुल जाए कहीं, और चला जाए न वो ख्वाब में आया हुआ शख्स, ठोकरें खा के जो गिरते हैं वो संभल जाते हैं, ठोकरें खा के जो गिरते हैं वो संभल जाते हैं, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स, ठोकरें खा के जो गिरते हैं वो संभल जाते हैं, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। 21वीं सदी का शेर सुना रही हूँ मैंने। 21वीं सदी की और 22वीं सदी के बहुत अशार लिखे मैंने। 21वीं सदी की औरत का शेर भी लिखा था, पहले वो सुना लेती क्योंकि ये साईं का मुशायरा है यहाँ पर हम सब, और ये लफ्ज़ मेरे दिल को इतना भाता है कि मैंने इसको बेतहाशा अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। साईं बता भी दीजिए कि सक्खर से ताल्लुक। हाँ, सक्खर से ताल्लुक है, और सक्खर क्या, ये सब कुछ ही हमारा है भाई। तो पहले मैंने 21वीं सदी की औरत का शेर लिखा था सबसे पहला कि मैं कोई पिछले जमाने की सोहनी तो नहीं जो करके कच्चे घड़े पे भरोसा मर जाती। 20वीं सदी की औरत का शेर था, मैं 21वीं सदी की औरत का शेर लिखा। अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, अगर मैं डूबी उसे साथ लेके डूबूंगी, कि मोहब्बतों में भी सफाक होना पड़ता है। 22वीं सदी की औरत का शेर भी लिखा है। गालिब ने कहा था ना कि हम ले आएंगे बाजार से जाकर, तो बड़ी उसकी हंसी उड़ाते थे लोग, पागल समय आज ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं बाजार। तो इसी तबके पे शेर लिखा है मैंने। अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं, अब तेरे साथ मेरा जी नहीं लगता साईं, तूने पूछा था नमी आंख में क्यों है साईं। वाह। तो अब ये 21वीं सदी का शेर आप सुनाए इस गजल में कि
ठोकरें खा के जो गिरता है संभल जाता है, पर संभलता नहीं नजरों से गिराया हुआ शख्स। आपके तजुर्बे का शेर सुना रही हूँ, लेकिन जब कभी शायरी की तारीख उठाई जाएगी 2050 में, तो इस शेर के बाद उनको पता चलेगा कि किस सदी का शेर आफाकी है, लेकिन ये उससे पहले का शेर नहीं है। तो मुलाहिजा फरमाएं कि शब तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, शबे तन्हाई में ऐसा है मेरा मोबाइल, जैसे कि होता है एक दोस्त बनाया हुआ शख्स। जैसे कि होता है एक दोस्त बनाया हुआ शख्स, जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जीने देता है न मरने की इजाजत रूही, जान ले लेगा मेरी जान को। आज की एकता महफिल मुशायरा की मेहमान एजाजी रेहाना रूही अपने खूबसूरत कलाम और उसकी खूबसूरत नरेशन के साथ जो है आप लोगों के सामने अपना कलाम पेश कर रही थी। और आज की इस महफिल मुशायरा जो सिंधी और उर्दू अदब के इन सितारों से सजा हुआ है, जो शायरी के उफक पर जगमगा रहे हैं, और इलाकाई ज़बानों में जितना खूबसूरत अदब तख्लीक किया जाता है, अगर उसको उर्दू समेत अगर दुनिया की ज़बानों में ट्रांसलेट किया जाए तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ कितना खूबसूरत और कितना आफाकी अदब तख्लीक होता है। और शाह लतीफ़, सच्चद सरमस्त, सामी और इसी तरह के बहुत से सूफिया इसकी बड़ी मिसाल हैं। तो दूसरी तरफ मीर के यहाँ भी ये लहजा है, गालिब के यहाँ भी जो है ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगाहे शीशा गली का, या हस्ती के मतफरेब में आ जाई हो असद, आलम तमाम हल्का दामे ख्याल है। तो ये आफाकियत जो है वो दोनों नहीं बल्कि हर ज़बान व अदब में मौजूद है, सिर्फ उस तक पहुंचने की ज़रूरत है। हमने ये कोशिश की कि हम जहाँ रहते हैं जिस खित्ते में, उसको यहाँ एक जा करके, और मैंने बताया था शुरू में कि नई कदरें का ये मिशन था, जो रिसाला नई कदरें था, कि उसमें सिंधी के जो खूबसूरत और बड़े अफसाने और शायरी और नावल और नज़में होती थी, उनके तराजिम शामिल किए जाते थे, और सिंधी अदीबों और शायरों को भी उतनी ही जगह मिलती थी जितनी उर्दू के शोरा को या उदबा को मिलती थी। तो बहरहाल ये नई कदरें चूँकि अख्तर अंसारी अकबराबादी साहब ये निकालते थे और हमने इस इदारे को दोबारा रिवाइज़ किया है, तो इंशाअल्लाह ये मिशन हमारा जारी रहेगा। डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा आज की महफिल के मेहमान खुसूसी हैं, और सिंधी और उर्दू दोनों पर इनकी ज़बान की हद तक तो दस्तरस है, शेर उर्दू में लिखते हैं, और टंडो मोहम्मद ख़ान से इनका ताल्लुक़ है, तो सिंध की मिट्टी इनमें रची बसी हुई है। और यही इस मशायरे की खुसूसियत थी कि इकबाल पीरज़ादा का मैंने इंतखाब किया, क्योंकि ये दोनों ज़बानों का एक इम्तिज़ाज है, और इनके गुफ्तगू में आपको ये रंग नुमायाँ नज़र आएगा। आज की महफिल के मेहमान खुसूसी डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा, और हमारी कोई 4 दाइयों की रिफाकत दोस्ताना तो है। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, ख़ास तौर पे सदर मुशायरा जनाब नूर रिज़वी साहब, जनाब बहराज साहब, हमारे दोस्त इकबाल शहवानी साहब, और जितने लोग यहाँ शरीक हैं। मेरी यहाँ शिरकत में इसमें प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, तो आमतौर पर जाता नहीं, मुशायरे में जा नहीं सकता इस वक्त तक, लेकिन लुत्फ़ ये है इस मुशायरे का कि मैंने इत्तफ़ाक़ से उन महफ़िलों में शिरकत की है जिसका नाम से आज यहाँ तज़किरा हो रहा है, जनाब अख्तर अंसारी अकबराबादी की नई कदरें। उनके रिसाले में जैसे छपे हैं हम, बल्कि उन महाफिल में भी शरीक रहे जो वो बदीन में, मातमी में,
मीरपुर ख़ास में, नवाब शाह में, संगत खानगढ़ में करते थे और उस ज़माने में बहुत शायद यूनुस संगम साहब उसके गवाह हों, उन्होंने वो महफिल देखी हों। और तो बहुत बड़ा काम है और वो बड़ा जज्बा था, बहुत बड़ा, जिसको दरमियान में न जाने क्यों उसको नज़र लग गई। तो इसका आगाज़ लिया है, तो खुदा करे कि आज की गुजारी एक शोला बने और ये बात आगे बढ़े। मैं सदर मोहतरम की याद से एक हाइको सुनाता हूँ जो मैंने इमदाद हुसैनी की एक किताब है आऊँ आया रोल, उससे मुतासर होकर मैंने कही थी कि दुनिया आए गोल, दुनिया आए गोल, तोखे मूसा मिलणू होंदो, आऊं आया रोल। दुनिया आए गोल, तोखे मूसा मिलणू होंदो, आऊं आया रोल। तो ये मैंने एक अलामत के तौर पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें क्या रखी है, उसका भी ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह लाएंगे। आज यहाँ फ़ज़ा बना रखी है रमज़ी आसम ने और फ़र्रुख इज़हार ने, बड़ी आशिकाना, बिल्कुल सलीका शायरी की फ़ज़ा ही नहीं है। और जिसको मौका मिल रहा है वो अपने महबूब को कोस भी रहा है, जो तंग है वो दाद दे रहा है और जो खुश है वो लोग ले रहा है। तो इस शिरकत में मैं भी बड़ी शिरकत कर लेता हूँ, दो चार शेर। तो मैंने कहा सुनो मुझे कहना कुछ और है। मैंने कहा पसंद आया, किसको पसंद आया? आप बहुत दिल जलिए, आप इसके लुत्फ लीजिएगा, एक मिसरा लेकर जाइएगा अपने साथ, काम आएगा जिंदगी भर। तो मैंने कहा सुनो मुझे कहना कुछ और है, उसने कहा नहीं मुझे सुनना कुछ और। मैंने कहा सुनो मुझे कहना कुछ और है, उसने कहा नहीं मुझे सुनना कुछ और है। मैंने कहा कि मैं तुझे हासिल न कर सका, मैंने कहा कि मैं तुझे हासिल न कर सका, उसने कहा कि इसका तरीका कुछ और है। मैंने कहा कि इसका तरीका कुछ और है। उसने कहा मैंने कहा कि मुझसे मोहब्बत नहीं तुझे, मैंने कहा कि मुझसे मोहब्बत नहीं तुझे, उसने कहा कि तेरा इरादा कुछ और है। मोहब्बत नहीं तुझे, उसने कहा कि तेरा इरादा कुछ और है। मैंने कहा कि प्यार का ईमान है वफा। रियाना ने कहा कि मुझे बेवफा लोग अच्छे लगते हैं, तो मैंने भी अपने दोस्त से कहा कि मैंने कहा हम तो ईमान वहाँ पे रखते हैं ना साहब, हम अभी 19वीं सदी के लोग हैं, अभी 21वीं गए नहीं हैं, इसलिए हमें तो अभी तक वफा अच्छी लगती है। तो मैंने कहा कि प्यार का ईमान है वफा, उसने कहा कि मेरा अकीदा कुछ और है। उसने कहा कि मेरा अकीदा कुछ और है। मैंने कहा बिछड़ के न रोना पड़े कहीं, मैंने कहा बिछड़ के न रोना पड़े कहीं, उसने कहा कि रस्म ज़माना कुछ मैंने कहा बिछड़ के आला। बच्चन साहब मोहब्बत करने वाले आदमी हैं और बहुत मुश्किल से दाद देते हैं, लेकिन दाद देते हैं तो अपना शेर अच्छा लगने लगता है। मैंने कहा बिछड़ के न रोना पड़े कहीं, उसने कहा कि रस्म ज़माना। और इसी बदल में एक शेर ऐसा आ गया कि जो इस तरह का नहीं जैसा आप सुनना चाह रहे हैं, लेकिन है अच्छा, इंशाल्लाह पसंद आएगा। मैंने कहा तरफ के मनाजिर हैं 400, मैंने कहा तरफ के मनाजिर हैं 400, उसने कहा न देख तमाशा कुछ और। मैंने कहा
कुछ और है, उसने कहा न देख तमाशा कुछ और है। चूँकि शुरा भी बहुत रहे और खूब दादी और मुझे पहुँचना भी है, मैंने सोच रखा था आज एक मोहतरमा बीना साहिबा ने कि मुझे मुखातिब करके 4 मिसरे पढ़े थे, तो ज़रा एक मिसरा उसका फरमा दीजिएगा, कुछ याद है? कितने हसीन और स्लिम हो जाते मैं और तुम अगर जिम हो जाते। इस शेर को ज़हन में रखिएगा। तो मेरे जहन में आया था कि तुम बीना गर दिल से कहती, तुम बीना गर दिल से कहती, हम खुलजा सिमसिम हो जाते। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी खूबसूरत लघु लहजे के शायर और महफिल और ऑडियंस की नब्ज पर इसी तरह से हाथ रखकर शेर सुनाते हैं जैसे मरीज के नब्ज पर हाथ रखकर मर्ज की तशखीस करते हैं इकबाल पीरज़ादा। तो इकबाल पीरज़ादा का खूबसूरत कलाम आपने मुलाहिज़ा फरमाया और अब मैं जनाब सदर के बारे में कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, मगर सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि सैयद नूर रिजवी साहब उर्दू में भी कादरुल कलाम है और सिंधी में भी कादरुल कलाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गज़ल के साथ साथ सलाम और मरसिया पर भी आपकी दस्तरस और आपका नाम और मकाम बहुत मारूफ और मकबूल है। और मुझे ये शर्फ न्याज हासिल है कि मैं इनके न्याजमंदों में शुमार होता हूँ और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मेरी इस दावत पर एकता मुशायरे की सदारत के लिए आपने रोड़ी से भी थोड़ा सा आगे जाकर गांव है साईं का, वहाँ से यहाँ तक ज़हमत फरमाई सिर्फ एक इस नाचीज़ की दावत पर, तो जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। और फिर इसके बाद सिर्फ इतना कहूँगा कि वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, तो फिर मैं रोशनी के लिए नूर ही तलब कर सकता हूँ। तो सैयद नूर रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मोहब्बतें इकबाल सेवानी साहब की और उनके रफ़क़ा की और एकेडमी अदबियात के हमारे इकबाल जराज साहब की, उन्होंने याद फरमाया और इतनी मोहब्बत से याद फरमाया कि यकीन जानिए 500 किलोमीटर का सफ़र मुझे 1 किलोमीटर का लगा। और ये नहीं कि मैं एहसान जताना चाहता हूँ, कल सुबह सक्कर आर्ट्स काउंसिल में इंतखाबात हैं, मैं खुद उम्मीदवार हूँ वहाँ पर। मैंने वोट और अपना ओहदा इनकी मोहब्बतों की नज़र कर दिया। तो ये माहौल, ये शायरी इतनी आला पाई की सुन के इतना अच्छा लगा। हमारे सिंधी बोलने वाले हजरात जो सिंधी में बड़े मारूफ शुरा हैं, उनकी उर्दू शायरी सुन के और उर्दू लिखने वालों से सिंधी के अल्फाज या कुछ शायरी सुन के इतना ये माहौल हकीकतन एकता की नुमाइंदगी करता हुआ मोहतरमा के लबे मुबारक से साईं का लफ्ज़ इतना अच्छा लगा। और सोनी अगर निहार को लेकर डूबी तो ये सखर की ही कोई खातून कह सकती है, क्योंकि दरिया के ऊपर उनकी राहत है, आपको पता होगा यकीन। आपकी नजर काफी हो चुका है, बस चंद अशार सिंधी के, और फिर अगर हुक्म हुआ तो और सिंधी का मैंने इंतखाब एक ऐसी गज़ल का किया है कि ज़्यादा उसकी शरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी कदम भी तोड़े संदम आरज़ू न थी, पूरी कदम भी तोड़े संदम आरज़ू न थी, दिल सां जुदा तॾहिं बि तुंहिंजी जुस्तजू न थी। पूरी
कॾहिं बि तोड़े संदम आरज़ू न थी दिल खां जुदा तॾहिं बि तुंहिंजी जुस्तजू न थी तूं बि नहेल आहीं मौसम बहार में तूं बि नहेल आहीं मौसम बहार में दिल जी कलीब आशनाए रंगो बू तूं भी नहेल आए मौसम बहार में दिल जी कलीब आशनाए रंगो बू नथी ऐं मसजूद फरिश्तन जो करे मोकिलियो वियो मसजूद फरिश्तन जो करे मोकिलियो वियो इंसान जी इंसान वटि छो आबरू मसजूद फरिश्तन जो करे मोकिलियो वियो इंसान जी इंसान वटि छो आबरू न थी ऐं दरअसल उन्हीअ इश्क खे नाकाम ई चइबो दरअसल उन्हीअ इश्क खे नाकाम ई चइबो शोहरत जे संदसि शहर शहर कूब कूब महिरबानी साईं दरअसल उन्हीअ इश्क खे नाकाम ई चइबो शोहरत जे उनजी शहर शहर कूब कूब न थी ऐं हीला कया हज़ार हुननि हमसरीअ संदा हीला कया हज़ार हुननि हमसरीअ संदा हूरा ने खुर्द मां का संदे हू बहू न थी हीला कया हज़ार हुननि हमसरीअ संदा हूरा ने खुर्द मां का संदे हू बहू न थी शहर ॾिसो त मुश्किल घणीअ खां विया परवाना ईअं बची मुश्किल घणीअ खां विया परवाना ईअं बची बहितर थियो जो शम्मा जे हू रूबरू न थी मुश्किल घणीअ खां विया परवाना ईअं बची बहितर थियो जो शम्मा जे हू रूबरू न थी ऐं दिल में शिकायतुनि जो हुयो समुंड मौजज़न दिल में शिकायतुनि जो हुयो समुंड मौजज़न साम्हूं अची वियो त का बि गुफ़्तगू दिल में शिकायतुनि जो हुयो समुंड मौजज़न साम्हूं अची वियो त का बि गुफ़्तगू न थी ऐं बेमय खुमारी लई रहन मस्त नीम बाज़ बेमय खुमारी लई रहन मस्त नीम बाज़ अखड़ियुनि खे तुंहिंजे हाजत जामो सबूत बेमय खुमारी लई रहन मस्त नीम बाज़ अखड़ियुनि खे तुंहिंजे हाजत जामो सबूत न थी दामन शराफतुनि जो अञा तार तार आ दामन शराफतुनि जो अञा तार तार आ शायद कमीस यूसुफ तादम रखू न दामन शराफतुनि जो अञा तार तार आ शायद कमीस यूसुफ तादम रफू न थी ऐं छाकाणि नूर इश्क जो सजदो नथो करी छाकाणि नूर इश्क जो सजदो नथो करी नियत में कोई खोट अथी या वज़ू न थी शाला नूर इश्क जो सजदो नथो करी नियत में कोई खोट थी या वज़ू न थी पूरी कॾहिं बि तोड़े संदम आरज़ू न थी दिल खां जुदा तॾहिं बि तुंहिंजी जुस्तजू सर इश्क मोहब्बत की बहुत बातें हो चुकी वतन के नाम एक नज़्म ऐ वतन आके तुझे मैं हरदम आईना है ख्याल में रखूं ऐ वतन आके तुझे मैं हरदम आईना है ख्याल में रखूं और इस तरह ज़हन को मिले वुसअत मैं तख़य्युल कमाल में रखूं इस तरह ज़हन को मिले वुसअत मैं तख़य्युल कमाल में रखूं और सरफराजी तेरी हुजूर रब सरफराजी तेरी
हुजूर रब रोज दस्ते सवाल में रखूं। सरफराजी तेरी हुजूर रब रोज दस्ते सवाल में रखूं और रफ़तें आसमान की लेकर रफ़तें आसमान की लेकर तेरे जाहो जलाल में रखूं। रफ़तें आसमान की लेकर तेरे जाहो जलाल में रखूं और रंग लेकर तमाम फितरत के रंग लेकर तमाम फितरत के फिर तेरे खद्दो खाल में रंग लेकर तमाम फितरत के फिर तेरे खद्दो खाल में रखूं। और शेर देखिए कि शिद्दतों को तबाह कुन जानूं, शिद्दतों को तबाह कुन जानूं, हर कदम एतदाल में रखूं। शिद्दतों को तबाह कुन जानूं, हर कदम एतदाल में रखूं। और तू पुकारे तो मैं ज़हन अपना तू पुकारे तो मैं ज़हन अपना फिर अज़ाने बलाल में रखूं। तू पुकारे तो मैं ज़हन अपना फिर अज़ाने बलाल में रखूं और तेरे आदा कर सकूं यकजा तेरे आदा कर सकूं यकजा और पाबंद जाल में रखूं। तेरे आदा कर सकूं यकजा और पाबंद जाल में रखूं और खुल्द को और तेरी धरती को खुल्द को और तेरी धरती को नुक्ता-ए इत्तिसाल में रखूं। खुल्द को और तेरी धरती को नुक्ता-ए इत्तिसाल में रखूं और तेग बन जाऊं तेरे दुश्मन पर तेग बन जाऊं तेरे दुश्मन पर सर कभी तेरी ढाल में रखूं। तेग बन जाऊं तेरे दुश्मन पर सर कभी तेरी ढाल में रखूं और जख्म के साथ तेरी मिट्टी को खाना-ए इंदमाल में रखूं। जख्म के साथ तेरी मिट्टी को खाना-ए इंदमाल में रखूं। और आखिरी शेर है कि सोच तेरी की सातों को नूर सोच तेरी की सातों को नूर किस तरह माहो साल में ऐ वतन के तुझे मैं हरदम आईना-ए ख्याल में। मुअज़्ज़िज़ शुरकाए महफ़िल, अस्सलाम वालेकुम। अदारा नई कदरें के ज़ेर एहतमाम आज के इस दूसरे प्रोग्राम सिंधी उर्दू महफ़िल मुशायरा में आप तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की निहायत भरपूर शमूलियत पर अदारे की तरफ से मैं आप सबसे दिली इज़हार ममनूनियत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अदारे के प्रोग्रामों में आप सबकी दिलचस्पी अगर इसी तरह कायम दायम रही तो हम बहुत जल्द अपना मकसद पा लेंगे। साहिबों, आज के इस प्रोग्राम को इस कदर ज़बरदस्त कामयाबी से हमकरार करने पर मैं तमाम मोहतरम शोराए कराम का भी तहे दिल से शपासगुज़ार हूँ, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में शरीक होकर इस महफिल को गैर मामूली कामयाबी से हमकरार किया। पूरी करने के लिए इस मुख्तसर से हरफ सिपास पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। हाँ साईं भली करे आया। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि मैं एकेडमी ऑफ लेटर कराची के इंचार्ज इकबाल गहराज साहब को इदारे की तरफ से शुक्रिया के लिए आप ज़हमत दूँ, मैं एक ऐलान यहाँ करना चाहता हूँ कि 26 तारीख जुमे का दिन होगा, 26 जनवरी को इसी हॉल में यूनुस हमदम साहब की किताब शेरी मजमुआ है 7वां आंसू भी इबादत है, इसकी तकरीब रुनुमाई नई कदरे के प्लेटफॉर्म से इसी हाल में मुनक्किद होगी। आपने तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है तो उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और अब एकेडमी ऑफ लेटर के इंचार्ज जनाब इकबाल गहराज से दरख्वास्त है कि रस्मी शुक्रिया मेहमानों का अपने इदारे की जानिब से अदा करें। माण्हू सभु न सुणा अखी सभु न हंज कह कह माण्हू मन अचे हुए अकादमी अध्यात्म पाकिस्तान आने वाले मेहमानों का खुशामदीद।
और स्टेज पे भी मेहमान बैठे हुए हैं, उनको सबको खुशामदीद कहते हैं। और आगे भी मेहमान जो उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी जो हमारी महफिलें होंगी और तकारीब होगी उनको आप भरपूर शिरकत करेंगे। हमने आगे भी इनको मेरे ख्याल में 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं, अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम आगे भी सोचा हुआ है काफ़ी प्रोग्राम होगा। तो आने वाले मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह आप आगे भी ताउन करेंगे और अकादमी अदबियात पाकिस्तान बल्कि कराची आपको खुशामदीद करता है। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस आज की खूबसूरत महफिल मुशायरा अपने अख्ताम को पहुंची और चाय पर हम आपके मुंतज़िर हैं। अब चाय का सिलसिला होगा।